ہسپتال۔ صبح صادق کا وقت تھا، شفق پھوٹ نکلی تھی، اندھیرا چھٹنے لگا تھا، سورج طلوع ہونے میں ابھی وقت تھا۔ ہسپتال کے اس اسپیشل کمرے میں جھانکو تو ہسپتال کے کپڑوں میں ملبوس سنگل پیشنٹ بیڈ پر لیٹا وہ نوجوان وجود دائیں ہاتھ میں اپنا موبائل پکڑے محو دکھائی دے رہا تھا۔ بائیں ہاتھ میں کینولے کے ذریعے سفید مائع قطرہ قطرہ اس کے جسم میں داخل ہو رہا تھا، ساتھ ہی ڈرپ سٹینڈ رکھا تھا۔ سامنے ڈبل سیٹر صوفہ تھا، بیڈ کی پشت پر دیوار میں نصب کھڑکی سے باہر کا سرسبز لان دکھائی دے رہا تھا۔ مونگیائی رنگ کے شلوار قمیض میں ملبوس، شانوں پر خاکی رنگ کی شال پھیلائے، پاؤں میں قیمتی بھورے جوتے پہنے، دایاں ہاتھ کمر کے پیچھے باندھے، بائیں ہاتھ کی چوڑی کلائی میں قیمتی گھڑی پہنے، بائیں ہاتھ کی مٹھی کھڑکی کے دھانے پر رکھے وہ خاموشی سے کھڑکی سے باہر کا نظارہ دیکھتے کسی گہری سوچ میں محو تھے۔ نرمین بیگم کو ابھی تک ہسپتال آنے کی اجازت نہیں دی گئی تھی، البتہ یاسر صاحب نے انہیں آگاہ کر دیا تھا کہ عمار کو ہوش آ گیا ہے۔ بابا، آپ کس سوچ میں گم ہیں؟ سب خیریت ہے؟ اپنے باپ کو گہری سوچ میں گم دیکھ کر وہ اپنا موبائل بند کر کے تکیے کے قریب رکھتا نکہت زدہ دھیمی مگر سنجیدہ آواز میں ان سے مخاطب ہوا تھا۔ یاسر صاحب اس کی آواز سے ہوش کی دنیا میں لوٹے تھے۔ کھڑکی سے اپنا ہاتھ ہٹا کر وہ اپنا رخ موڑتے دھیمے قدموں سے اس کے قریب پہنچے تھے۔ میں ٹھیک ہوں بچے، بس ایک بات کرنی تھی تم سے، سمجھ نہیں آ رہا کہ کن الفاظوں میں تم سے مخاطب ہوں۔ تم تو اتنے کمزور نکلے کہ اپنی محبت کو خود سے جدا کرتے موت کو گلے لگا کے تمہاری بزدلی نے خوف زدہ کر دیا ہے مجھے، یاسر صاحب سنجیدگی سے کہتے اس کے پاس بستر پر ہی پاؤں لٹکائے بیٹھے تھے۔ اپنے باپ کی بات سنتا وہ شرمندگی کی اتھاہ گہرائیوں میں غوطہ زن ہونے لگا۔ اب اتنا بھی بزدل نہیں آپ کا بیٹا کہ آپ کو مجھ سے مخاطب ہونے سے قبل الفاظوں کا انتخاب کرنا پڑے۔ اگر بزدل ہوتا تو اپنی محبت کو اس کی عزت و وقار کی خاطر کبھی نہ چھوڑتا۔ میری تربیت شیر جیسے باپ نے کی ہے، یہی وجہ ہے کہ میں اپنی خواہش اور قلب کو مارتا اپنی دو پسندیدہ عورتوں کا بھرم قائم رکھ گیا۔ عمار نے جیسے اپنے بہادر ہونے کی دلیل دی تھی، یاسر صاحب لاجواب ہوئے تھے۔ تمہاری صحت میری پہلی ترجیح ہے عمار، کیونکہ تم میرے اکلوتے اور لاڈلے بیٹے ہو۔ میرے پاس 2 خبریں ہیں جس سے میں تمہیں آگاہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں، لیکن اپنی جوان اولاد کو کھونے کا حوصلہ نہیں ہے مجھ میں۔ میں اپنا بڑھاپا تمہاری جدائی میں نہیں گزارنا چاہتا۔ یاسر صاحب تمہید باندھ کر کہتے، مقابل کو ٹھٹکنے پر مجبور کر کے۔ ان کی آنکھوں میں جمع ہوتی نمی عمار کو تڑپا کی۔ بابا، مجھے کچھ نہیں ہوگا، اپنی صحت کی ضمانت میں آپ کو خود دیتا ہوں، آپ بس مجھے آگاہ کریں۔ عمار تڑپ کر اٹھ کر تکیے سے ٹیک لگا کر بیٹھا، اپنے مضبوط ہاتھوں میں ان کے دونوں ہاتھوں کو تھام کر انہیں تسلی دے کر استفسار کرنے لگا۔ کل رات دہیا اور فقیہہ کا نکاح ہو گیا۔ فقیہہ دہیا کی بچپن کی منگیتر تھی اور وہ خود اس بات سے بے خبر تھی۔ یہ رشتہ بچپن میں ہی وقار نے تنزیلہ بھابی کی رضامندی سے جوڑا تھا، لیکن پھر حالات ایسے رہے کہ وہ فقیہہ کو آگاہ نہ کر سکا۔ یاسر صاحب اس کے دونوں ہاتھوں کو تھام کر کہتے جیسے دھیرے دھیرے سے جسم سے جان نکالنے لگے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں موجود اس کے مضبوط ہاتھ کانپنے لگے، جسم ساکت ہوا تھا، سانسیں تھم سی گئی تھیں، آنکھیں اس کے چہرے پر ہی ٹھہر گئی تھی۔ لمحے گزرنے لگے، کمرے میں خاموشی بڑھنے لگی، جیسے سوئی گرنے کی بھی آواز محسوس ہو۔ یاسر صاحب کی سانسوں کی مدھم آواز فضا میں سنائی دے رہی تھی، جبکہ اس کے ساکت وجود میں ایک شور سا اٹھنے لگا تھا۔ دل و دماغ آندھیوں کی نظر ہونے لگے تھے، آنکھیں سبد کے باعث سرخ ہوئی تھی، لیکن آج مقابل نے انہیں بہنے کی اجازت نہیں دی تھی، کیونکہ آج اس کے ساتھ کسی اور کا حوالہ تھا، وہ کسی اور کی ہو چکی تھی، اس کا نام کسی اور کے نصیب میں لکھا جا چکا تھا، اس کا مقدر کسی اور سے جڑا تھا۔ یاسر صاحب کی نظریں اپنے بیٹے کا ہی طواف کر رہی تھی، وہ اس کی ہر ایک کیفیت سے واقفیت رکھتے تھے۔ قسمت بھی عجیب شے ہے بابا، مجھ سے چھین کر میرے ہی دوست کی جھولی میں ڈال دیا۔ مقدر کے فیصلے بہت سخت ہوتے ہیں بابا۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد وہ تلخی سے کہتا لب کاٹنے لگا، تم قسمت کو قصوروار نہیں ٹھہرا سکتے عمار، سب کچھ کیا دھرا قسمت کا نہیں ہوتا۔ فقیہہ سے نکاح سے انکار تم نے خود کیا تھا، قسمت نے تمہیں انکار کرنے کا نہیں کہا تھا، یہ تمہارا ذاتی فعل تھا، تو پھر تم قسمت کو کیوں مجرم ٹھہرا رہے ہو؟ یاسر صاحب نے جیسے اسے تلخ حقیقت کا آئینہ دکھایا تھا، لیکن فقیہہ کو دہیا کے نصیب میں ازل سے لکھ دیا گیا تھا۔ اگر میں نکاح سے انکار نہ کرتا تو تب بھی فقیہہ کا نکاح مجھ سے کبھی نہیں آتا۔ عمار نے زمانی الفاظوں میں جیسے ان سے اختلاف کیا تھا۔ بے شک فقیہہ کا نکاح دہیا سے ہی ہونا تھا، لیکن حالات مختلف ہوتے، راستے مختلف ہوتے، حالات ہم خود پیدا کرتے ہیں، راستے کا انتخاب ہم خود کرتے ہیں، اور پھر جب ہم غلط راستہ چن لیں تو قسمت کو قصوروار ٹھہراتے ہیں۔ یہ تو مقدر کے ساتھ ناانصافی ہے بیٹا، یہ انصاف تو نہیں ہے، لیکن محبت تو خود اللہ پاک آپ کے دل میں ڈالتے ہیں بابا، تو پھر میرا راستہ کیسے ہوا؟
मैंने तो कभी कोई नाजायज़ काम करने की कोशिश नहीं की। अपनी मोहब्बत को दुरुस्त और जायज़ तरीके से अपने निकाह में लेने की कोशिश की थी, फिर मुझे मेरी मोहब्बत क्यों ना मिली? और अगर नहीं मिलनी थी तो मुझे उससे मोहब्बत क्यों हुई? और नज़रें यासिर साहब के हाथों में मकीद अपने हाथों पर नज़रें टिकाए रंजीदगी से गोया हुआ था। अल्लाह पाक ने एक से दूसरी नज़र गैर महरम को देखना भी गुनाह करार दिया है, और जब हम गुनाह करके अल्लाह पाक की नाफरमानी करते हैं तो हम किस मुंह से कहते हैं कि ये सो कॉल्ड मोहब्बत अल्लाह पाक ने हमारे दिल में डाली है? इस नाम निहाद मोहब्बत को पाने के लिए हम अपनी तमाम तर जायज़ हदूद पामाल कर देते हैं, वालिदैन का भरोसा तोड़ते हैं, अल्लाह पाक की खुली नाफरमानी करते हैं। तब हमें क्यों अपनी और अल्लाह पाक के दरमियान मौजूद मोहब्बत याद नहीं रहती? क्यों हमें अल्लाह पाक की जलाल का खौफ भूल जाता है? आजकल की मोहब्बतें पाकीज़ा और सच्ची नहीं हुआ करती। जब आप एक दूसरे के बारे में जानने लगते हो, एक दूसरे से महवे गुफ्तगू होते हो, तो एक कशिश पैदा हो जाती है जिसे आजकल के लोग मोहब्बत का नाम देते हैं, और हमारी इसी बदएहतियाती के बायस हम गुनाह के दलदल में फंसते चले जाते हैं और मुजरिम ठहराते हैं किस्मत को। हालांकि किस्मत लिखने वाले अल्लाह ने हमें नामहरम से बेजा मुखातिब होने से भी मना किया है। इंसान बहुत खुदगर्ज होते हैं अमार। इंसान अपनी गलती तस्लीम करने के बजाय उसे दूसरों पर थोपने की काविश करता है, और अपनी फितरत से मजबूर होकर वह अपनी किस्मत को भी मुजरिम ठहरा देता है, ये जानते हुए भी कि किस्मत लिखने वाला अल्लाह है, और हम अनजाने में नाउजुबिल्ला मंसाली का अल्लाह पाक को मुजरिम ठहरा रहे होते हैं। यासर साहब रसानियत से उसे समझा रहे थे, वो उसकी कैफियत से बाखबर थे। मेरा सवाल अब भी वही है बाबा, मेरी तहज्जुद में मांगी गई दुआओं से वाकिफ़ है ना आप? मेरी करबो अज़ेतनाक सिसकियों की गूंज आपकी समात में मुकीद है ना बाबा? मेरी उसे पाने की हर जायज़ काविश के गवाह है ना आप? वो किसी मासूम बच्चे की मानिंद सवाल करता जैसे अपना कसूर तलाश करना चाह रहा था। अमाल, मैंने पहले भी कहा था और अब भी यही कहूँगा कि सच्ची और पाकीज़ा मोहब्बतें हसूल की मोहताज नहीं होती। तारीख गवाह है बेटा कि लाहासिल मोहब्बतें ही अमर होती हैं। मोहब्बत करना तुम्हारा ज़ाती फ़ेल था, किस्मत ने या किसी और ने तुम्हें उस फ़ेल को अंजाम देने पर मजबूर नहीं किया था, इसलिए अब उसका उसका अंजाम भी तुम्हें ही भुगतना है। यही तुम दोनों के हक में बेहतर था। तुम्हारा ज़मीर हर किस्म के बहुत से आज़ाद है। तुम पछता नहीं सकते कि काश मैं अपनी मोहब्बत को पाने के लिए कुछ कर लेता। तुमने अपनी मोहब्बत के हसूल के लिए हर जायज़ काम किया, लेकिन वो तुम्हारे नसीब में नहीं थी, और इसलिए अल्लाह पाक की रज़ा में राज़ी हो जाओ। आप सही कह रहे हैं बाबा, उन सब चीज़ों का जिम्मेदार मैं खुद हूँ। मम्मा ने भी मुझे मोहब्बत करने की इजाज़त कभी नहीं दी। वो बचपन से कहती थी कि अमार की दुल्हन मैं खुद लाऊंगी। लोग कहते हैं कि औरत अपनी पहली मोहब्बत नहीं बोलती, लेकिन मैं कहता हूँ कि औरत हो या मर्द, कभी अपनी पहली मोहब्बत नहीं बोल सकता। अमार तल्खी से कहता दोबारा से बिस्तर पर दराज हुआ था, न कहा तो कमज़ोरी के बायस ज़्यादा देर बैठ नहीं पा रहा था। तुम सही कह रहे हो अमार, कोई भी शख्स अपनी पहली मोहब्बत नहीं भूल सकता, चाहे वो औरत हो या मर्द, बशर्ते कि मोहब्बत सच्ची और पाकीज़ा हो। इंसान की पहली मोहब्बत उसके लाशऊर में हमेशा जिंदा रहती है, चाहे वो पछतावे की सूरत में हो या फिर खसारे की। वो एक माजी बनकर हमारे जहन और कल्ब के किसी हिस्से में मदफन हो जाती है, और फिर जब हम उससे मुताल्लिक कोई गुफ्तगू या कोई फेल करते हैं, वह हम पर सवार होने लगती है। मख्तसर ये कि हमारी मोहब्बत से जुड़ी चीज़ें ही हमें अपनी मोहब्बत को याद रखने पर मजबूर करती हैं। खवा व बेजान शय हो, आदतें हों या गुफ्तगू, लेकिन वक्त अल्लाह पाक की तरफ से एक बहुत बड़ी नेमत है। वक्त हर चीज़ को माजी बना देते हैं, और माजी में रहने वाले लोग अपना हाल और मुस्तकबिल खुद अपने हाथों से तबाह करते हैं, क्योंकि ये इंसान के कमज़ोर ईमान की दलील है। जिसका ईमान मजबूत होता है वो हर हाल में सब्र करते हुए अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते हैं। तुम अम्मार यासिर हो। अम्मार रज़ा एक ऐसी बहादुर माँ की औलाद है जिन्होंने इस्लाम की खातिर सबसे पहले अपने आप को कुर्बान किया। अम्मार रज़ा हज़रत समिया रज़ा और हज़रत यासिर रज़ा की औलाद थे। मैंने खुद तुम्हारा नाम अम्मार रखा था, क्योंकि वह एक अजीम माँ की औलाद और एक अजीम हस्ती थे। लेकिन ज़रूरी तो नहीं कि हर अम्मार के नसीब में समिया जैसी माँ लिखी हो। मैं तुम्हें हमेशा से बहादुर, निडर और बेबाक देखना चाहता हूँ। अम्मार, जिस दिन तुमने बुज़दिली दिखाई उस दिन मेरी तुमसे वाबस्ता तमाम उम्मीदें, ख्वाहिशात पाश पाश हो जाएंगी। बहादुर बनो और अल्लाह पाक की रज़ा में राज़ी होकर हालात पर सब्र करते हुए अल्लाह पाक का शुक्र अदा करो। इस तरह अस्पताल के बिस्तर पर दराज होकर तुम खुद को बुज़दिल साबित करो। यासिर साहब एक अजीम माँ की मानिंद उसके जहन के दरीचे खोलते चले गए। मैं बुज़दिल नहीं हूँ बाबा, मैं ऐसा क्या करूँ जो आपको यकीन आ जाए कि आपका अमार बुज़दिल नहीं है। यासिर साहब की बातें उस पर असरअंदाज होती उसे एक नए अज़म से दो चार कर गई थी। तुम्हें आज ही एक मजलूम लड़की को अपने निकाह में लेना है अमार, और सेहत के साथ कि तुम मरते दम तक उससे बेवफाई के मर्तकब नहीं होगे। उसे अपनी बीवी का रुतबा दोगे, उसके साथ किसी भी किस्म की नाइंसाफ़ी नहीं करोगे और ना ही उसके किरदार पर शक करोगे।
हर हालात में उसके साथ शाना बशाना खड़े रहोगे और उसकी ढाल बनकर उसकी हिफाजत करोगे। यासिर साहब एक बार फिर उसके दोनों हाथों को अपनी मजबूत गिरफ्त में लेते संजीदगी से उससे अहद ले रहे थे। ठीक है बाबा, जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा, लेकिन आप मुझे आगाह करें कि इतनी अफरा तफरी में मेरा निकाह किससे हो रहा है। अमार अपनी रजामंदी देकर अपने बाप का मान रखता उन्हें मुस्कुराने पर मजबूर कर गया। कल रात एक फेक अकाउंट से तुम्हारे साथ किसी लड़की की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की गई हैं और साथ में ये भी कहा गया कि तुम दोनों का काफ़ी अरसे से अफेयर चल रहा है। मैं जानता हूँ ये सब झूठ है, लेकिन लोग ये बात तो नहीं जानते। एक लड़की को तुम्हारे साथ जोड़ा गया और मैं चाहता हूँ कि अब तुम उसे अपने साथ जोड़कर उस मुजरिम को तलाश करो। मैंने अपने एक बंदे को भेजा है, वो कुछ ही वक्त में उस लड़की और उसके ख़ानदान की तमाम तर तफसीलात लेने गया है। यासिर साहब उसे तमाम हालात से आगाह कर गए थे। बाबा, इस तरह तो लोगों की शक पर मोहर मोहर लग जाएगी। अमार बामुश्किल अपने अंदर उठता इश्ताल ज़ब्त करता उस मासूम दोशीज़ा के लिए परेशान हुआ था। निकाह की मोहर और जैसी हज़ारों शक की बेबुनियाद मोहरों पर भारी है। अभी तुम पर मुनहसर है कि तुम किस तरह उस मासूम लड़की के किरदार पर उछाला गया ये दाग साफ करते हो। मुमकिन है कि कोई तुम्हारा और उस बच्ची का यकसां दुश्मन हो। यासिर साहब ने जैसे उसे एक टास्क दिया था, अंधेरा छुट गया था। सूरज मुकम्मल तलू हो चुका था। खिड़की से झांकती रोशनी के बायस कमरा रोशन हो गया था। दफातन दरवाज़ा नॉक हुआ और इजाज़त मिलने पर स्याह पेंट कोट में मलबूस एक खुश शक्ल 30 साला नौजवान कमरे में दाखिल हुआ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप बेहतर महसूस करे होंगे। वह मुअद्दब सा दोनों को सलाम करता अमार से मुखातिब हुआ। जी अल्हम्दुलिल्लाह। अमार सलाम के जवाब के साथ मुख्तसर सा जवाब देता खामोश हुआ था। यासिर साहब ने भी धीमे से सलाम का जवाब दिया। उसामा, जो काम दिया था वो हो गया? यासिर साहब उसकी तरफ मतवज्जा होते उससे मुखातिब हुए थे। जी सर। मैडम का नाम उमैमा नाइम है। वालिद नईम साहब का ताल्लुक टंडो आदम शहर से है। उनका एल्युमिनियम का छोटा सा बिजनेस है। वालिदा हाउस वाइफ है। एक भाई उमैस नाइम वालिद के साथ ही बिजनेस करते हैं। उमैस की शादी उसके मरहूम पप्पा की यतीम बेटी से हुई है और उसका एक बेटा भी है। नईम साहब के छोटे भाई वसीम साहब कराची के इलाके यासीनाबाद में रिहाइश पसीर हैं। उनके भी 2 ही बच्चे हैं। बड़ा बेटा कबीर वसीम अपने वालिद के साथ ही एल्युमिनियम का बिजनेस करता है। शादीशुदा और एक बेटे का बाप है। छोटी बहन लामिया वसीम ने हाल ही में FSC मुकम्मल करके कराची यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया है। उमैमा नईम और लामिया वसीम दोनों कजन्स होने के साथ साथ बेस्ट फ्रेंड्स भी हैं। उमैमा नईम ने भी हाल ही में FSC मुकम्मल करके कराची यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया है। दोनों के मज़ामीन भी एक जैसे हैं। यूनिवर्सिटी के बायस से वो कराची आई हुई थी। कल रात से ही वो नर्वस ब्रेकडाउन के बायस इसी हस्पताल में दाखिल हैं। कुछ वक्त कबल ही उन्हें होश आया। उनके वालिदैन भी टंडो आदम से रात में ही पहुंच चुके हैं। उसामा किसी रोबोट की मानिंद तमाम मालूमात उनके गोशो गुजार कर किया। बहुत अच्छे उसामा, अब तुम अपने और अमार के लिए नाश्ता लिया। मैं बच्चे के वालिदैन से कुछ मामला तय कर लूँ, फिर निकाह के बाद तुम घर जाकर आराम कर लेना। यासर साहब बेड से उठ खड़े होकर अपने कपड़े दुरुस्त करते उसे हिदायत देते कमरे से निकलते चले गए। उसामा भी उनकी पैरवी करके उनके हिदायत पर अमल करता नाश्ता लेने चला गया। पीछे अमार यासिर अकेला मुकद्दर के खेलों को समझने की अदना सी कोशिश करने लगा। खिड़की से झांकता सूरज उसके ज़हन कल्ब के अंधेरों को ख़त्म करने की कोशिश करने लगा। बहरिया टाउन, कराची, फ्लैट नंबर 135। रात का तीसरा पहर था। हर सू खामोशी का राज था। फजर की आसानी हर सू गूंज रही थी। बेड पर लेटे उस नाजुक वजूद में हलचल सी महसूस हुई थी। नींद की दवाई के बायस आंखें अनदेखे बोझ तले महसूस हो रही थी। कोशिश के बावजूद आंखें खुलने से इनकारी थी। चंद लम्हे कोशिश के बावजूद वो कसमसाती हुई आंखें खोलते छत को घूरने लगी। जहन अभी तक बेदार नहीं हुआ था। वह नासमझी की कैफियत में मुब्तला अपने इर्द गिर्द का माहौल पहचानने की कोशिश करने लगी। चंद सातें बाद जहन कुछ बेदार हुआ तो हर चीज़ जहन के पर्दों पर किसी फिल्म की मानिंद चलने लगी। फकीहा माहौल से मानूस होती अपने दुखते सर पर हाथ रखती उठकर बैठी थी। उसकी नज़र दूसरी सिमत औंधे मुंह अपने बिस्तर पर दराज दहिया पर पड़ी। वो खामोशी से उसके सोए हुए वजूद को नज़रअंदाज करके सरहाने रखा अपना भारी भरकम दुपट्टा सर पर ओढ़ती बेड से नीचे उतरी। उसका रुख बाथरूम की जानिब था। वो बामुश्किल अपने भारी भरकम कपड़े संभालती बाथरूम की तरफ पड़ी थी। बाथरूम का दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ से दहिया भी नींद से बेदार हुआ था। वो खाली और जहन की कैफियत में उठकर बैकग्राउंड से टिक लगाकर बैठा था। आंखों में नींद के बायस सुर्ख डोरे नुमाया थे। वहाँ के मलता बाएं बाएं हाथ से अपनी जमाई रोकने लगा। रात देर से सोने के बायस उसकी नींद पूरी नहीं हुई थी। कच्ची नींद में बेदार होने के बायस
आंखें अभी भी नींद के बोझ तले भारी हो रही थी। तकरीबन 5 मिनट गुजरने के बाद फकीहा अपना भारी भरकम लिबास थाम कर बाथरूम से बाहर निकली थी। भारी कामदार दुपट्टे के हाले में मेकअप से पाक उसका नम चेहरा उसके बाबसो होने की गवाही दे रहा था। फकीहा को कमरे में दाखिल होता देख दिहिया की नींद फक से उड़ी। वह उजलत में सीधा होकर बैठा था, जबकि नजरें अब भी उसी पर टिकी थी। मुझे जायनमाज और चादर दरकार है, क्या आपके पास दस्तयाब होगी? दिहिया को खुद को घूरता देकर वो संजीदगी से इस्तफसार करती होश की दुनिया में लाई थी। रुको, मैं देता हूँ। दहिया नरमी से कहकर बेड के पास रखे अपनी चप्पल पैरों में अड़सता अलमारी की तरफ बढ़ा। चंद लम्हे कुछ ढूंढने के बाद वो अपनी मतलूबा चीजें हाथ में थामे उसकी तरफ मुड़ा था। फकीहा को उसके हाथ में एक सफ़ेद मखमली जायनमाज और सफ़ेद मर्दाना शॉल दिखी थी। काबे का रुख तुम्हें मालूम होगा, क्योंकि तुम्हारा फ्लैट सामने ही है। ये मेरी शॉल है, तुम उसे ओढ़ कर नमाज पढ़ लो, बल्कि मेरा इंतज़ार करो, मैं अभी वज़ू करके आ रहा हूँ, साथ नमाज अदा करेंगे। निकाह की 2 सुन्नतें भी पढ़ी हैं। दहिया एक और सफ़ेद मखमली जाय नमाज उसे थमाकर आगाह करता बाथरूम की तरफ बढ़ गया। फकीहा उसकी हिदायत पर अमल करती किबला रुख दोनों जाय नमाज बिछाकर उसका इंतज़ार करने लगी। कुछ देर बाद वो अपनी आस्तीनें सीधी करता फकीहा से कुछ कदम आगे बिछी जाय नमाज पर खड़ा हुआ था। दोनों ने पहली निकाह की सुन्नतें अदा की थी, उसके बाद साथ ही दहिया की इमामत में दोनों नमाज फजर अदा की। अब वो दोनों सलाम फेर कर तस्बीह करने के बाद दुआ करने लगे। दहिया दोनों हाथों को फासले से फैलाए दुआ मांगने में महव था, जबकि फकीह अपने दोनों हाथों को जोड़े आंखें बंद किए दुआ मांगती, जैसे अपने अल्लाह को अपने करीब महसूस करने की कोशिश कर रही थी। कुछ देर बाद दहिया दुआ से फारिग हुआ, अपना रुख उसकी जानिब कर गया, जो कि अभी तक दुआ में मशगूल थी। दहिया की नजरें खुद पर टिकी देखकर फकीहा अपनी दुआ मुकम्मल करती सवालिया नजरों से उसे देखने लगी। दहिया उसकी सवालिया नजरों को समझता, उसके नर्म और नाजुक दोनों हाथों को अपने मजबूत हाथों में थाम कर कुछ दुआएं पढ़कर उसके चेहरे पर फूंक गया था। फकीहा ने बेसाख्ता अपनी आंखें मौंदी थी। दहिया उसकी बंद आंखें देखकर नरम मुस्कुराहट लबों पर सजाता नरमी और मोहब्बत से उसके चादर में छुपे सर पर हौले से बोसा दे गया। आज की फ्लाइट से अंकल के साथ लंदन जा रही हो? दहिया उसके हाथों पर अपनी गिरफ्त मजबूत करता इस्तफसार करने लगा। फकीहा ने मुकाबिल के हाथों में मकीद अपने हाथों पर नजर टिकाए हंकारा भरा था। अपना ध्यान रखना, मैंने रात को अंकल से तुम्हारा नंबर ले लिया, हम राब्ते में रहेंगे। इंशाल्लाह मैं कॉन्सर्ट से वापस आ जाऊं, फिर रुखसती की तारीख मुकर्रर कर लेंगे। दहिया नरमी से उसे आगाह कर रहा था। मैं अभी रुखसती नहीं चाहती। फकीहा नजरें उठाकर उसे देखती मनमनाई थी। क्यों क्यों नहीं चाहती रुखसती? दहिया संजीदा हुआ, उसे फकीहा से इनकार की उम्मीद नहीं थी। मैं अभी पढ़ना चाहती हूँ, मेरी पढ़ाई अभी रहती है। फकीहा ने अपने इनकार के मकसद से मुकाबल को आगाह किया। रुखसती के बाद भी पढ़ सकती हो, मैं पढ़ने से नहीं रोकूंगा, ये एक फजूल जवाब है। दहिया ने उसका जवाब रद्द किया। मैं अभी रुखसती के लिए रजामंद नहीं हूँ। क्या मेरी रजामंदी अहमियत नहीं रखती? फकीहा संजीदगी से इस्तफसार कर रही थी। बिल्कुल रखती है, लेकिन तुम्हारे रजामंद ना होने के पीछे कोई ठोस जवाब का होना जरूरी है। ठोस जवाब यही है कि मैं अभी रुखसती नहीं चाहती, निकाह भी बहुत उजलत में हुआ है, मुझे इस रिश्ते को कबूल करने के लिए वक्त दरकार है। फकीहा, मैंने बचपन से तुमसे मोहब्बत की है, मैं तुम्हारे मुतालिक कुछ नहीं जानता था, मुझे तो तुम्हारा नाम तक नहीं मालूम था। मैं सिर्फ इतना जानता था कि कोई मेरी मंगेतर है जो मेरे नाम पर बैठी है, जिससे मेरा होना है। और अब जब वो वक्त आ गया है, मेरे ख्वाब को ताबीर मिलने लगी है, तो तुम क्यों पीछे हट रही हो? वो भी बिना किसी ठोस जवाब के। दहिया जाए नमाज पर बैठा मुकाबल से अपनी सच्ची मोहब्बत का इजहार कर रहा था। शक की तो कोई गुंजाइश ही नहीं बची थी। जब तक आप अपना पेशा नहीं छोड़ देते, मैं रुखसते के लिए रजामंद नहीं होंगी, क्योंकि मैं एक ऐसे शख्स के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकती जो हराम कमाता हो। फकीहा ने असल वजह से उसे आगाह किया था। सिंगिंग मेरा पैशन है फकीहा, और तुम मेरी बीवी हो, मैं दोनों में से किसी एक को भी नहीं छोड़ सकता। तुम भी तो ड्रामे लिखती हो, क्या ये हलाल है? वो नरमी से उसे समझाता सादगी से इस्तफसार कर रहा था। उसके लहजे में कहीं भी तंज की आमेजिश नहीं थी। मैं वो काम छोड़ चुकी हूँ, और वैसे भी अपने लिखे हुए ड्रामों का मुआवजा मैं नहीं लेती थी, अब मैं लिख कर किताबी शक्ल में शाया करवाऊंगी। फकीहा ने संजीदगी से उसे आगाह किया। मैंने तुम पर तंज नहीं किया, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि मैं अपना पैशन नहीं छोड़ सकता। सिंगिंग मेरा जुनून है। फकीहा के लहजे में हवकी महसूस करके दिया ने सफाई दी। आप हराम काम करके अनजाने में नाउजुबिल्ला मंजाली का अल्लाह पाक से जंग कर रहे हैं, और मैं आपका उस जंग में साथ नहीं दे सकती। आप मुझसे मोहब्बत के दावेदार हैं, कि आप अल्लाह की मोहब्बत में सिंगिंग नहीं छोड़ सकते? जब आप अल्लाह पाक से वफादार नहीं हैं, तो मैं कैसे यकीन कर लूं कि आपकी मोहब्बत मेरे लिए वफा से भरपूर है?
फकीहा अपने दोनों हाथ उसकी गिरफ्त से छुड़वाकर संजीदगी से तल्ख जुमले कहती मुकाबल को लाजवाब कर गई थी। देहिया ने एक नज़र अपने हाली हाथों को देखा। फकीहा जो नमाज से उठ खड़ी हुई थी, उसे तय कर रही थी, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। मुझे उम्मीद है मेरे वापस आने तक तुम अपनी जिद से पीछे हट जाओगी। देहिया अपनी जगह से उठ खड़ा होता बहस खत्म कर गया था। हमारी इस मुतालिक अब कोई बात नहीं होगी। आप उसे मेरी जिद समझ लें या कुछ भी, रुखसती तभी होगी जब आप सिंगिंग छोड़ देंगे। अगर आपको ये मेरी जिद लग रही है तो जिद ही सही, मेरी जिद नाजायज़ भी नहीं है। फकीहा जो है नमाज को बेड की पाइंतीक पर रखती, उसके मुकाबले होती, दो बदो जवाब देती, लाजवाब कर गई थी। छोड़ो इन बातों को, ये बताओ कब की फ्लाइट है? फकीहा को एक ही बात पर अटकता देख देहिया बात बदल गया। 9 बजे की फ्लाइट है। फकीहा दोनों जाए नमाज को अलमारी में रखती उसे आगाह करी थी। पैकिंग कर ली? देहिया ने बेड पर दराज होते हुए फिर से सवाल किया। जी, पैकिंग कल ही कर ली थी, बस अभी चेंज करके निकलने हैं। एयरपोर्ट तक पहुंचने में वक्त लगेगा। फकीहा अपने सर से चादर उतार कर बेड पर रखती मैचिंग भारी दुपट्टा खुद पर फैलाकर अपने बाल खोलने लगी। कितने उलझ के हैं बाल, अभी कैसे सुलझेंगे, कितनी तकलीफ होगी। फकीहा के उलझे हुए बाल देखकर वो परेशानी से कहता उठ बैठा था। कल हेयर स्टाइल बनाया था, उसके बाद सुलझाने का मौका ही नहीं मिला। अब अच्छे से ऑयलिंग करके सुलझाऊंगी। फकीहा एक के बाद एक बाल पिन अपने बालों से निकालती बेड पर रख रही थी। उफ अल्लाह, कितनी पिन्स इस्तेमाल की हैं तुमने, कितने बाल टूट रहे हैं, और फिर जब बाल सुलझाओगी तब और भी ज्यादा टूटेंगे। पिन्स के साथ टूटते बालों को देखकर दहिया उसके बालों के लिए फिक्रमंद हुआ था। आप क्यों इतने परेशान हो रहे हैं? जो बाल टूटने हैं वो तो टूटेंगे ही। फकीहा हैरानी से मुकाबल के परेशान तासुरात देकर कहती बमुश्किल बमुश्किल अपनी हंसी जब्त कर रही थी। इतने प्यारे बाल हैं, टूटेंगे तो दुख नहीं होगा क्या? दहिया उसे मसनूई सा घूरता इस्तफसार कर रहा था। अगर बाल प्यारे हैं तो मेरे हैं, दर्द होगा तो मुझे होगा, बाल टूटेंगे तो मेरे टूटेंगे। आप क्यों इतने परेशान हो रहे हैं? फकीहा अपने बालों को पिनों की कैद से आजाद करवाती थक कर बेड पर बैठी थी। तुम किसकी हो? दहिया उसके मुकाबल कंधे पर लेटता इस्तफसार करने लगा। अपनी मामा की। फकीहा ने मसरूफ से अंदाज में जवाब देते हुए अपनी हंसी जब्त की थी। अब वो हाथ में पकड़े कंघे से अपने बाल सुलझाने लगी थी। बीवी अपने शौहर की होती है, इसलिए मिसेस फकीहा दहिया अल कल्बी सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद दहिया अल कल्बी की है। जब तुम मेरी हो तो तुम्हारे दुख, गम, मुसीबतें, परेशानियां, खुशियां, हत्ता कि तुम्हारे बाल तक मेरे हैं, और मैं आपको अपने बालों के साथ इतनी बेरहमी से पेश आने हरगिज नहीं दूंगा। दहिया उसे घूरते हुए उसके तेजी से कंघा करते हाथों पर चोट करता उठ खड़ा हुआ। उसका रुख सिंगार में इसकी जानिब था जहां फकीहा के तमाम जेवरात रखे हुए थे। फकीहा अपना हाथ रोके खामोशी से मुकाबल की हरकतों सकनात मुलाहजा फरमाने लगी। वो उसके बालों के लिए कितना परेशान हो रहा था, उसकी ये फिक्रमंदी फकीहा को हंसने पर मजबूर कर रही थी। दहिया सिंगार में इसकी पहली दराज खोलकर उसमें से कांच की बादाम की तेल की शीशी उठाकर वापस बेड की तरफ आया था। आगे होकर बैठो और ये कंघा मुझे दो, मैं सुलझाऊंगा तुम्हारे बाल। तुम जिस जारहाना अंदाज में बाल सुलझा रही हो, सारे ही तोड़ दोगी। दहिया हाथ में तेल की शीशी पकड़े उसके सर पर नाजिल होता हल्की से उसे हुक्म दे रहा था। फकीहा बामुश्किल अपनी हंसी जब्त करती उसकी हिदायत पर अमल करके कंघा उसे पकड़ा कर जगह छोड़कर आगे होकर बैठी थी। दहिया तेल की शीशी और कंघा थामे उसकी पुश्त पर बरजमान हुआ। सिंगार में इसके आईने में दोनों का अक्स साफ नजर आ रहा था। दहिया हथेली का चुल्लू बनाकर बोतल में से थोड़ा सा तेल हथेली पर उंडेल कर शीशी एक तरफ रखकर उसे दोनों हाथों पर मलकर फकीहा के बालों की जड़ों में लगाने लगा। दहिया के मजबूत मगर धीमे हाथों से की जाने वाली मालिश फकीहा को सकून पहुंचाने लगी। उसने बेसाख्ता अपनी आंखें मूंदी थी। फल्ला, कितनी गांठें बंध रही हैं। लड़की, खबरदार, जो आइंदा इतने प्यारे बालों का बेड़ा गर्क किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतने खूबसूरत बालों का सत्यानाश किया हुआ है। बालों की कदर उनसे पूछो जिनके पास नहीं है। तुम्हें अल्लाह पाक ने बिन मांगे इतने लंबे, घने, सिल्की, चमकदार और खूबसूरत बाल दे दिए तो तुम्हें परवाह ही नहीं है। अगर एक दफा बालों की रौनक चली गई तो हजारों जतन करने के बावजूद वापस नहीं आएगी। दहिया हल्के हाथों से उसके सर पर बादाम के तेल की मालिश करता उसकी क्लास ले रहा था। बस कर दे, इतने ताने तो सास भी नहीं देते जितने आप दे रहे हैं। तकरीब के बायस हेयर स्टाइल बनाना पड़ा और फिर तबीयत खराबी के बायस सुलझा नहीं सकी, इसलिए ज्यादा उलझ गए। मेरे पास जेल है जिससे बाल टूटते भी नहीं है और आसानी से सुलझ भी जाते हैं। यहाँ दस्तियाब नहीं है, इसलिए मुझे ऐसे ही सुलझाने पड़े हैं। फकीहा कब से उसकी डांट सुनती आखिर बोल ही पड़ी थी।